नेम, नाम चेंज करो अपना. हाउ डू आई नो दैट यू आर रेड मी और ब्लू मी? आपका अटेंडेंस भी वैसे ही जाएगा. सो DMart, Big Bazaar, these are all examples of departmental store. Now, how do you define a department? Department क्या होता है? Department को क्या बोलेंगे? Department means a part of the organization. आप लोगों को लिखना है. Means a part of the organization which with special or allotted function. Or sphere of activity duty or competence what is department? It is a part of organization. Makeup का भी store. Yes, Sakshi, makeup का भी store. Very correct. So department means a part of organization with special or allotted function. हर department को एक special function रहता है या special activity रहता है या special duty रहता है या competence रहता है. That means a departmental store. So पहले departmental stores में क्या क्या होते थे? Product wise departmental store हो सकता है. Departmental store can be product wise, like आपका DMart grocery, then clothing, then kitchenware, then home decor. So इतने सारे departments है उसमें. Makeup, that is cosmetics. और कुछ stationery, very good. So these are the departments on the basis of product. Similarly, department can be also be on the basis of function. जैसे purchase department, production department, marketing department, finance department. So यहाँ पे ये departmental departments है, but ये departments किसके basis पे है? On the basis of functions. किस basis पे है? They are on the basis of functions. कोई department purchase कर रहा है, कोई production कर रहा है, कोई marketing कर रहा है, कोई finance कर रहा है. Your deal today we have started with the new topic, departmental accounts. This is departmental final accounts. मतलब इसमें आप trading, profit and loss account और balance sheet बनाने वाले. So you can have department on the basis of product, on the basis of function, also on the basis of process. Process means अभी आपका जो ये कपड़ा बनता है, it passes through various process. That is weaving. Actually पहले बनता है thread, threading, then weaving, weaving से कपड़ा बनता है, then bleaching, bleaching से कपड़े को white किया जाता है, and then dyeing, dyeing से कपड़े को color किया जाता है, dyeing या designing, whatever you call it as. So process wise, oil जो आप use करते हो, it also passes through three process: crushing, then filtering, and then finally refining. You all are using refined oil.
आप जो ऑयल यूज कर रहे हो वो रिफाइंड ऑयल है। कोकोनट को पहले क्रश किया जाता है, क्रश करने से उसमें तेल निकाला जाता है, उस तेल को छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है, उसमें से इम्प्योरिटीज निकाली जाती है एंड फाइनली उसको रिफाइन किया जाता है। So a department can be on the basis of product, on the basis of function, on the basis of process. डिपार्टमेंट करने का क्या फायदा? What is the use of having departments? अभी आप जाते हो डीमार्ट में, आप उधर अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखते हो, तो उसका क्या फायदा है? डिपार्टमेंटल अकाउंट्स या डिपार्टमेंट का क्या फायदा है? यस, पैकिंग, आप यू कैन विजिट डायरेक्टली टू द डिपार्टमेंट वेयर यू आर इंटरेस्टेड। जहां पे से आपको कुछ खरीदना है, आप डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट पे आ जा सकते हो, बराबर। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलो, यू टॉक अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। आपके लिए तो ये फायदा है, कस्टमर को ये फायदा है कि कस्टमर विल गेट डायरेक्टली व्हाट द कस्टमर वांट्स। यस, एक दुकान में सब चीजें मिल जाएंगी, प्लस आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए जहां वो डायरेक्टली आप उस डिपार्टमेंट में चले गए तो आपको वहां पे वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाउ यू टेल मी, बिजनेसमैन क्यों करना चाहेगा? व्हाई बिजनेसमैन वांट्स टू हैव डिपार्टमेंट्स? अब डीमार्ट जाते हो, उसने इतने सारे डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, तो इसकी वजह से उसको जगह भी तो ज्यादा लगती है ना, सब चीजें एक ही जगह पे रख देता तो इतना प्रॉब्लम ही नहीं होता। वहां पे तो इतना क्लासिफिकेशन है कि बिस्किट्स भी सारे आपको एक जगह पे मिलेंगे, शैम्पूज एक जगह पे। यस, फॉर नोइंग द स्टॉक। और मेन तो वो इसलिए करता है टू नो द टोटल, टू नो द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ डिपार्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। मतलब अगर सब साथ में रखता था तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है, कौन सा प्रोडक्ट कम सेल होता है, वो उसको समझता ही नहीं था। लेकिन डिपार्टमेंट वाइज जाने की वजह से उसको ये समझेगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दे रहा है, दैट ही विल कम टू नो। आर यू गेटिंग इट? उसको क्या मालूम पड़ेगा कि व्हाट, and then he can know what is the cost of running the department, what is the sales and what is the profitability. अगर कोई प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, उसको मूवमेंट ऑफ स्टॉक पता चलेगा, कहाँ से स्टॉक फटाफट मूव होता है, कहाँ पे ऑर्डर फटाफट प्लेस करना पड़ता है। इट हेल्प्स इन नोइंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक मेंटेनेंस इजी हो जाता है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बिकम्स इजी। वेरी गुड। He can have a proper control, डिपार्टमेंट वाइज कंट्रोल हो सकता है ना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सकती है, सबको अपना अपना काम प्रॉपरली दे दिया तो डिपार्टमेंट वाइज कंट्रोल हो जाएगा। यस, नो? ही कैन फ्रेम पॉलिसीज, जो डिपार्टमेंट नहीं चल रहे हैं उनको चलाने के लिए ही कैन मेक मोर बेटर पॉलिसीज, वो पॉलिसीज बना सकता है, बिजनेस पॉलिसीज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। So these are all possible with the help of departments. Okay. Now what are departmental accounts? Departmental accounts means final accounts, which will give you Omkar, Om Prakash. Mute yourself. Final accounts, which will help you
help you to know the profitability of each department. मतलब हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में क्या बनाते हैं? वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? कोई मुझे बता सकता है क्या? व्हाट कम्स अंडर फाइनल अकाउंट्स? What comes under final account? Can someone tell me? Yes, it is trading account, profit and loss account, and balance sheet. अब balance sheet is always prepared for a business as a whole. बैलेंस शीट डिपार्टमेंट वाइज नहीं हो सकती क्योंकि किसी डिपार्टमेंट के पास अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज नहीं होते. बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर वन बिजनेस. डीमार्ट इज वन बिजनेस, तो एक बिजनेस के लिए पूरा एक बैलेंस शीट बनेगा. इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डिपार्टमेंट वाइज, whereas trading account can be prepared department wise. So trading account can be departmental trading account. Profit and loss account can be departmental profit and loss account. There can also be general profit and loss account. Now, when to prepare what? Now, trading account deals with what? What is trading account all about? Trading account किससे डील करता है? ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं? Stocks. Stock. It deals with goods. Correct? Incoming and outgoing goods. Yes. And goods can be easily identified to a department. अभी अगर आपने ग्रोसरी परचेज किया है तो वो ग्रोसरी डिपार्टमेंट में जाएगा. ग्रोसरी सेल किया है तो ग्रोसरी का सेल्स दिखेगा. क्लॉथिंग का क्लॉथिंग. इस तरह से जो गुड्स होते हैं दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड टू अ डिपार्टमेंट. We can easily identify incoming goods and outgoing goods of every department. कौन से डिपार्टमेंट का कितना परचेज है, कितना सेल्स है, ये हम इजीली बता सकते हैं. यस, नो? इज इट क्लियर? लेकिन अभी आप डीमार्ट में जाते हो. अभी मेरे कुछ क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर देना है. ये डीमार्ट है बड़ा वाला. ठीक है, ये डीमार्ट है. हैव यू सीन? अभी उसमें ग्रोसरी है, फिर क्लोथ्स है, फिर किचन अप्लायंसेस है, फिर स्टेशनरी है, और क्या बोला था? होम डेकोर है. सो इतने डिपार्टमेंट्स है. हैव यू एनी टाइम ऑब्जर्व कि हर डिपार्टमेंट का मीटर अलग अलग है? कभी आपने देखा है? हैव यू एवर सीन? नो. मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो कॉमन आता है. जो रेंट भरा जाता है वो कॉमन होता है. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी. It can be owned, it can be rented.
डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स जैसे फर्नीचर सब कॉमन होगा, यू कैन नॉट सेपरेट इट आउट. तो मोस्टली all expenses that are incurred, they are not incurred department wise, they are incurred on totality. पूरे बिजनेस का एक ही दिखता है, लेकिन इसको हम डिवाइड कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज. वी कैन डिवाइड इट डिपार्टमेंट वाइज, वी कैन allocate it. नया वर्ड, डिवाइड को दूसरा वर्ड क्या है, allocate it on department on the basis of suitable, on some suitable basis. कोई सुटेबल बेस डिसाइड करके हम उसको डिवाइड कर सकते हैं ये सारे एक्सपेंसेस को. लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो कौन से डिपार्टमेंट में कितने इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है, मतलब कितनी लाइट्स, कितने फैंस, इसके बेसिस पे डिवाइड हो सकता है. यस और नो. हर डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट बहुत बड़ा रहेगा, कोई डिपार्टमेंट बहुत छोटा रहेगा, तो वी कैन डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स. Suitable basis can be light points, जिसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल ये डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. Rent rates and taxes can be divided on the basis of floor area. कौन सा डिपार्टमेंट बड़ा है उसको रेंट ज्यादा जाने का, जो एरिया छोटा है उसको रेंट कम देना है. It can be divided on the basis of floor area. Depreciation can be divided on the basis of value of asset of each department. So in short, what I mean to say is, trading account में जो goods purchase, sales, opening stock, closing stock आता है, वो हमको easily मालूम है कि कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा परचेज है, कौन सा सेल है, कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा ओपनिंग स्टॉक है, कौन सा क्लोजिंग स्टॉक है. वहां पे हमको डिवीजन करने के लिए कोई बेस नहीं चाहिए, कोई अलोकेशन करने के लिए कोई बेस नहीं चाहिए. लेकिन जो सारे आइटम्स पीएनएल में आते हैं वो सारे कॉमन आइटम्स रहते हैं, मतलब एक्सपेंसेस आर पेड इन कॉमन फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स. तो उसको अलोकेट करने के लिए वी नीड सम सुटेबल बेसिस. किस बेसिस पे डिवाइड करें. और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं विच कैन नॉट बी डिवाइडेड. कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या इनकम्स होती हैं विच कैन नॉट बी डिवाइडेड. बी डिवाइडेड अमंग डिपार्टमेंट्स. और जो डिवाइड नहीं कर सकते वो हम दिखाते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. जिसको डिवाइड करने के लिए मेरे पास बेस है, मेरे पास लॉजिक है कि मैं इस रेशियो में डिवाइड कर सकती हूँ, तो मैं उस रेशियो में डिवाइड करूंगी. जिसके लिए मेरे पास लॉजिक ही नहीं है डिवीजन का, उसको मैं कहाँ लेके जाऊंगी, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी बिजनेसमैन ने लोन लिया बिजनेस के लिए, डिपार्टमेंट के लिए नहीं लिया. इसके लिए लिया बिजनेस के लिए, ओवरऑल बिजनेस के लिए. दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड टू वन डिपार्टमेंट. तो इसको डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है. नॉट पॉसिबल टू डिवाइड और अलोकेट. तो ये डायरेक्टली कहा जाएगा जनरल पीएनएल में. Income tax. Income tax also cannot be divided because tax is on profit of the business. मम्मी सारा नहीं करती हूँ, एक्टिंग करूँ. Mute yourself, beta. Tax is on the profit of the business. बिजनेस का प्रॉफिट. कोई डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो प्रॉफिट में होगा, कोई डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो लॉस में होगा. तो उस बेसिस पे डिपार्टमेंट, उस बेसिस पे इनकम टैक्स नहीं चार्ज करता है. टैक्स इज चार्ज ऑन ओवरऑल प्रॉफिट. तो अगेन इट कैन नॉट बी डिवाइडेड डिपार्टमेंट वाइज. तो उसको हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, वी टेक इट टू
जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Okay. Then you have audit fees. अभी बिजनेस में ऑडिट करवाना कंपलसरी है. ऑडिट फीस को डिवाइड कर सकते हैं क्या? कैन वी डिवाइड ऑडिट फीस? ऑडिट फीस को हम डिवाइड कर सकते हैं? नो, क्योंकि ऑडिट बिजनेस बुक्स का होता है, बिजनेस अकाउंट्स का. इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट. हम काउंट करेंगे क्या कौन से डिपार्टमेंट का? कितने बुक्स हैं बने हैं उतना ऑडिट फीस डिवाइड करेंगे. इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स, इट इज फॉर बिजनेस ऑन अ होल. So again, this is not possible. डोनेशन डिपार्टमेंट नहीं करता है. डोनेशन कौन करता है? बिजनेस करता है, बिजनेसमैन करता है. सो ये जो डोनेशन है, दिस विल बी डायरेक्टली चार्ज टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब इसको डिवाइड करने के लिए मेरे पास कोई बेस नहीं है. जब ओनर सोचता है कि चलो मेरे को डोनेशन करना है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये डिपार्टमेंट में से प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इस डिपार्टमेंट से मैं डोनेशन करता हूँ. उसको डोनेशन करना है, वो डोनेशन बिजनेस में से करेगा. आर यू गेटिंग इट? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. अभी आप मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट किसने किया? डिपार्टमेंट ने किया या बिजनेस ने किया? इंटरेस्ट मिला मुझे इन्वेस्टमेंट पे, वो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का है या बिजनेस एज अ होल का है? बिजनेस एज अ होल का है. तो उसको कहाँ ट्रांस शो करेंगे हम लोग? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. ओनली विल डिवाइड दोज एक्सपेंसेस which are those expenses and incomes which are for a department. जो डिपार्टमेंट के लिए, जो डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, वो कहाँ जाएगा? सब जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आई होप सो आप ये सब लिख रहे हो. यू आर राइटिंग इट डाउन बिकॉज टुमारो इट शुड नॉट हैपन कि आपको याद ही नहीं है. सो आई थिंक आई हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस टॉपिक टू यू ऑल. कल थर्ड लेक्चर किसका है आपके क्लास में? आई विल बी टेकिंग थर्ड लेक्चर. कौन किसका है कल थर्ड लेक्चर आपके यहाँ? शायद बीसी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट ना? Yes. हाँ, तो आई विल टेक दैट सेशन लेक्चर अकाउंट्स. ठीक है, थर्ड लेक्चर अकाउंट्स टुमारो. डोंट मिस इट. आई एम गोइंग टू कंप्लीट द remaining theoretical part and then from Monday onwards, means from next lecture onwards we'll start with the problem. BC नहीं है, फाउंडेशन कोर्स. थर्ड फाउंडेशन कोर्स है. नो सॉरी. BC है. I know it's BC. Forget it. Chalo. Okay. So tomorrow third lecture accounts. Okay. Same link. Bye. Take care. Stay safe. Thank you so much, ma'am. Welcome, beta.